Good morning, dear students. How are you? I think you are all fit and fine. Dear students, today in the English literature class, I am going to teach you one important lesson, and that is from course book. And this lesson is from chapter 11, and the chapter 11 is what? The refugees. So who are refugees? Do you know? Refugees are those people who don't have permanent house or permanent place to live in. Okay, and refugees are those people who are actually driven out of their homeland, who are actually forced to leave their homeland or their place of dwelling. Okay, so here in this chapter we will learn one important lesson from this chapter, and before go to the lesson, let us know about who has written this play. This is actually a play. Okay, play, you know, it means drama. This play is written by Shyamala Kumaradas. Okay, and nothing is known about this writer. That's why I have not written anything. He has written some books. Those are actually available in net. You can search, but nothing known about the writer. That means his biodata. Okay. So in this story, there are characters. You can see the name of the characters: Jadav Rana, Anchal Rana, an old man, and Jadav Rana's advisors. Advisors means one who gives advice. Okay. Advisor means one who gives advice. And the story is all about, I am just giving the idea what is the story about. Okay, in short I have written there. What is that? The story is all about strangers. Strangers means unknown persons. Strangers get refuge to a new country. अनजान बहुत सारे लोग जो एक नया देश में पनाह लेते हैं, आश्रय लेते हैं. Showing their कर्जी, उन लोगों का व्यवहार, सुंदर सा व्यवहार दिखाते हुए, एंड पोलाइटनेस, शिष्टता दिखाते हुए, किसको दिखाते हैं? टू द न्यू रूलर एंड हिज मेन. जिस जगह में आए हैं उस जगह के शासक और उनके लोगों को ऐसा अच्छा व्यवहार दिखाते हैं जिस व्यवहार के कारण उन लोगों को उस नया सा देश में रहने को मिल जाता है. ठीक है. The strangers are actually the Parsis. Who are the strangers? The strangers are actually Parsis. Parsis means the people who actually lives in Persia. Okay, actually lives in Persia. So they are the Parsis who came to India. Actually, the Parsis came to India many years ago. Okay, and were adapted to with the passage of time and adapted to Indian culture. Actually, they were adapted to Indian culture. Okay, they were adapted to Indian culture with the passage of time. समय के साथ साथ भारतीय संस्कृति जो है उसके साथ ये लोग मिल गए, घुल मिल गए. ठीक है, वो लोग इंडिया को अपना लिए और इंडिया भी इन लोगों को अपना लिए. सो दिस इज द स्टोरी. दैट मीन्स द प्ले हैज ए स्टोरी एंड द स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस आई हैव रिटन. नाउ कमिंग टू द स्टोरी. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 125 so that we can start our lesson. Before the start of the lesson, there is the starter. Starter means something before the introduction, before the start of the story. What is that? Suppose a stranger comes to your house at night and asks for some food and shelter. सोच लो अनजान इंसान तुम्हारे घर में रात को आते हैं और रात में रहने के लिए खाना और आश्रय चाहिए. What will you do? उस समय में तुम क्या करोगे? How will you decide whether you should help the person? तुम किस तरह डिसीजन लोगे, किस तरह तुम लोग सोचोगे कि इन लोगों को रहने देना ठीक है, खाना देना ठीक है कि नहीं? किस तरह तुम डिसीजन लोगे?
Discuss this in groups of 3 or 4 and present your views to the rest of the class. 3-4 जन मिलके इसके बारे में चर्चा करो और क्लास में इसके बारे में बताओ. So now read the play. Characters in the play already discussed. Now scene. In play there are scenes. नाटक में बहुत सारा सीन रहता है और एक एक सीन के बाद पर्दा गिर जाते हैं और फिर इसके बाद पर्दा उठता है. तो इस तरह नाटक होते हैं. तो हर एक नाटक का अंग होता है. अंग के बाद पर्दा होता है और पर्दा के बाद क्या नया नया दृश्य को देखने को मिलता है. सो व्हाट इज द फर्स्ट सीन? इन ए रूम इन द हाउस ऑफ यादव राणा. यादव राणा नाम का एक इंसान है, उसके घर में ये कहानी है. अ लोकल चिफ्टेन ऑफ संजन इन गुजरात. गुजरात के संजन नाम का एक जगह है, उस जगह के ये हेड है कौन? यादव राणा. ओके. द ईयर इज 936 CE. दैट मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा. जीसस क्राइस्ट जन्म होने से पहले, कितना पहले? 936 वर्षों पहले इस घटना है. यादव राणा एंड ए नंबर ऑफ अदर मेन आर प्रेजेंट. तो जिस सीन का बात करें उस पहला सीन में हम लोग देखते हैं यादव राणा और उसके साथ साथ उन लोगों का साथी जो है वो वहाँ पे उपस्थित है. 2 सर्वेंट्स स्टैंड बिहाइंड हिम. 2 साथी सर्वेंट्स जो है, सर्वेंट्स मतलब जो उन लोगों का जो काम करने वाला जो है, तो 2 सर्वेंट्स जो है, नौकर जो है, उनके सामने उनके पीछे में खड़े हुए हैं. फैनिंग हिम, और उसको हवा कर रहे हैं, पंखा से हवा कर रहे हैं. यादव राणा इज ऑन हिज थ्रोन. यादव राणा अपना सिंहासन पे बैठे हुए हैं. सराउंडेड बाय हिज एडवाइजर्स. और उसके चारों ओर में घिरे हुए हैं एडवाइजर्स, मतलब सलाह देने वाले सलाहकार लोग बैठे हुए हैं, जो कि राजा को सलाह देते हैं, शासक को सलाह देते हैं कुछ काम के लिए, किस तरह काम किया जाए, किस तरह राज्य को चलाया जाए, इस तरह. दे आर इन द मिडल ऑफ ए डिस्कशन. ये लोग कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं. सडनली देयर इज एन इंटरप्शन. अचानक इन सलाह में बाधा आ जाते हैं, इन लोगों का डिस्कशन में बाधा आ जाते हैं. अ मैसेंजर राशेशिन, एक दूत जो कि कुछ मैसेज लेके आए, कुछ खबर लेके आए हैं, वो बहुत जोर जोर से दौड़ के अंदर में घुसते हैं. बाउस बिफोर यादव राणा एंड स्टैंड्स विद बाउड हेड. वो यादव राणा के सामने अपना सर झुकाते हैं और सर झुकाते हुए वहाँ पे खड़े रहते हैं. वेटिंग फॉर परमिशन टू स्पीक. और वो खड़े रहते क्यों? ताकि उनको बोलने को मौका मिले. यादव राणा इम्पेशेंटली, डोंट यू सी दैट वी आर इन द मिडल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. यादव राणा थोड़ा अधैर्य होके उस मैसेंजर को बोलने लगे, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम लोग एक महत्वपूर्ण बात में सलाह मशवरा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. Did anybody give you permission to interrupt us so rudely? तुम्हें कौन इस तरह अनुमति दिए है कि इस जगह में इस तरह दौड़ दौड़ के आके हमारा बातचीत में बाधा डालने के लिए इस तरह? वेल मैन स्पीक. बताइए क्यों ऐसे किया? टेल मी क्विकली व्हाई यू हैव कम रशिंग इन. मुझे जल्दी बताओ क्यों इतना जल्द तुम दौड़ के आए हो. मैसेंजर जो आए हैं अब वो बता रहे हैं. वेरी फ्राइटेन, वो डरा हुआ लग रहा है. क्या बोलते हैं? फॉरगिव मी माय लॉर्ड. महाशय मुझे माफ कर दीजिए. आई केम ओनली बिकॉज इट इज अर्जेंट. मैं इस तरह आया क्योंकि बहुत जरूरी बात करना है. अंचल राणा हिमसेल्फ आस्क्ड मी टू कम स्ट्रेट टू यू. अंचल राणा जो है वो मुझे आपके पास आने के लिए बोले, एंड टू ब्रिंग यू दिस मैसेज, और आपको एक मैसेज देने के लिए बोले. इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट अर्जेंसी. बहुत जरूरी बात करना है, बहुत जरूरी मैसेज देना है आपको. यादव राणा क्या बोलते हैं? वेल गिव मी द मैसेज देन. ठीक है बताओ क्या संदेश देना है तुम्हें. द मैसेंजर हैंड्स ओवर ए स्क्रोल टू वन ऑफ द सर्वेंट्स. और जो दूत आते हैं वो यादव राणा के जितना सारा सर्वेंट्स है, जो लोग हैं, उन लोगों को एक जन के हाथ में अपना जो स्क्रोल, जो लेटर, जो चिट्ठी लाए हैं, जो मुड़ के लाए हैं, रोल ऑफ लेटर्स. ओके. पहला जमाने में राजा लोगों के पास जब चिट्ठी आते थे तो रोल में आते थे. ओके. दैट मीन्स रोल ऑफ पेपर्स, उसमें लिखा आता था, तो उनके हाथ में देते हैं. यादव राणा सिग्नल्स टू वन ऑफ हिज एडवाइजर्स टू टेक द स्क्रॉल एंड रीड इट.
यादव राणा उन लोगों में से, उनके लोगों में से एक जन को इशारा करते हैं उसको खोल के पढ़ने के लिए। एडवाइजर 1, आप जो सलाह देने वाला हो उन लोगों में से एक जन उसको लिए एंड रीडिंग द ओपन स्क्रॉल, और चिट्ठी में जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, मतलब मैसेज में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है मैसेज में? टू हिज हाइनेस यादव राणा रूलर ऑफ सज्जन, और यहाँ पे लिखा हुआ है महाराज के पास लिख रहे हैं यादव राणा, और ये महाराज जो है वो सज्जन नाम के जगह के शासक। जैसे हम लोग लिखते हैं ना टू द हेडमास्टर, टू द हेडमिस्ट्रेस, टू द कमिश्नर, इससे लिखते हैं, तो भी लिखे हैं टू द किंग ऑफ सज्जन यादव राणा, तो इस तरह लिखे हैं टू हिज हाइनेस। तो हिज हाइनेस मतलब राजा, महाराज, धीराज, इस तरह। किसका नाम वहां पे लिखा हुआ है? यादव राणा का नाम लिखा हुआ है पहले, मतलब यादव राणा के पास वो चिट्ठी आया है फ्रॉम हिज हम्बल सर्वेंट आचल राणा। और कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से चिट्ठी आ रहा है? उसके एक प्रजा, उसका एक नौकर, उसका एक सर्वेंट, कौन है? आंचल राणा लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? योर हाइनेस, हुजूर, we have spotted a ship carrying a group of people from a foreign country near the shores of your land. महाशय, हम लोग देखे हैं कि एक जहाज, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बाहर के देश से आए हुए हैं, और वो हमारे जमीन के हमारा जो लैंड है उस लैंड के सामने खड़े हैं। मतलब वो लोग जहाज में आए हैं, समुद्र के किनारे में हमारा जमीन में खड़े हुए हैं। I have prevented them from coming to the shore without permission from you. मैं उन लोगों को किनारे में आने के लिए मना कर दिया, आपके परमिशन के बगैर आना नहीं है करके मैं उन लोगों को मना कर दिया। They will not be allowed to set foot upon your soil without your permission. आपके अनुमति बगैर, आपके अनुमति लिए ना लिए इन लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। Please tell me what to do with them. कृपया आप मुझे बताइए इन लोगों को क्या किया जाए। There are old people and women among them and they look peaceable. उस झुंड में बुजुर्ग इंसान भी बहुत सारे हैं, औरत भी है, और उन लोगों को देख के लगता है वो लोग शांति प्रिय है, मतलब शांति चाहते हैं। Awaiting your orders, your humble servant अंचल राणा। आपका आदेश के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपका प्रजा, आपका क्या है? सर्वेंट है। यादव राणा क्या करते हैं? ए शिप कैरिंग मेनी पीपल फ्रॉम ए फॉरेन लैंड, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? तो यादव राणा अपने जो एडवाइजर्स लोग जो बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं, एक जहाज, उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर से, तो इन लोगों को क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? सलाहकार से सलाह ले रहे हैं। राजा के साथ में बहुत सारे सलाहकार रहते हैं, और इन सलाहकारों में से एक जन रहता है जो हेड, उसको क्या कहते हैं जानते हो तुम लोग? उसको कहते हैं मिनिस्टर, मंत्री। तो यहाँ पे मंत्री नहीं है, 4-5 जन है, उनमें से एक जन को जवाब देना है। अभी जवाब दे रहे हैं, एक जन जवाब दे रहे हैं। एडवाइजर 1 मतलब सलाहकार एक, वो जवाब क्या दे रहे हैं? दे में बी डेंजरस। हाँ महाराज, जो लोग आए हैं वो लोग हो सकते हैं बहुत खतरनाक। I think आचल राणा should be asked to chase them away from our shores. और मुझे लगता है आचल राणा को ये आदेश दिया जाए कि उन लोगों को हमारा जमीन से भगाया जाए। एडवाइजर 2 दूसरा सलाहकार क्या बोलते हैं? On the other hand, sir, आचल राणा himself says that they look peaceable. आचल राणा तो खुद चिट्ठी में लिखे हैं वो लोग शांति प्रिय है, मतलब कोई हंगामा करने वाले नहीं। And that there are old men and women among them. और उन झुंड में बहुत सारे औरत भी है, बुजुर्ग इंसान भी है। Why don't you ask them to send their representatives to meet you here? तो आप क्यों नहीं बताते हैं आंचल राणा को कि उन झुंडों में से एक जन को आपके पास भेजा जाए? आंचल राणा would escort them and see to it that they are not carrying arms. और आंचल राणा उनके साथ इन लोगों को ला सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कोई उन लोगों के साथ अस्त्र शस्त्र कुछ ना लाए, खाली हाथ में आए। यादव राणा आप जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? यस आई थिंक दैट साउंड्स सेंसिबल। हाँ, आपका बात मुझे अच्छा लग रहा है। आपका बात मतलब एडवाइस
एडवाइजर 2 जो है उसका बात। लेट अस फाइंड आउट व्हाट दे वांट बिफोर वी सेंड देम अवे। हम लोग उन लोगों को यहाँ से भगाने से पहले हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये जानना जरूरी है, हम लोग ये ढूंढना है। राइट ए रिप्लाई क्विकली एंड सेंड इट टू आंचल राणा थ्रू दिस फेलो। जल्दी जल्दी एक उत्तर लिखिए और इस इंसान के जरिए आंचल राणा के पास वो मैसेज या वार्ता भेज दीजिए। टेल हिम दैट ओनली 4 of their people should be allowed to come and they should not be armed। और आंचल राणा को ये बोल दिया जाए कि बाहर से आए हुए लोगों में से 4 जन एक साथ में आ सकते हैं और वो लोग खाली हाथ में आएंगे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लाएंगे। एडवाइजर 2 और सेकेंड एडवाइजर जो है वो अभी जवाब देते हैं, यस माय लॉर्ड, हाँ महाशय। किसको बोलते हैं? टू द मैसेंजर। कम विथ मी, मेरे साथ आइए, आई विल गिव यू द रिप्लाई, आपको मैं जवाब भेजूंगा। नाउ सीन 2, अब सीन 2 दृश्य, सेकेंड दृश्य शुरू हो जाता है। सेम सीन एज बिफोर, पहला जैसे दृश्य था, एडवाइजर लोग थे, यादव राणा थे, उस तरह ही है। एंड हिज एडवाइजर्स एंड सर्वेंट्स दे आर प्रेजेंट। सडनली देयर इज अ स्टायर, अचानक वहां से कुछ हलचल दिखाई दे रहा है। एंड ए ग्रुप ऑफ पीपल केम इन, और एक झुंड लोग आए हैं, लेड बाय आंचल राणा, और सामने के कौन है? आंचल राणा, मतलब आंचल राणा के साथ और 4 जन आए हैं जो कि राजा से मिलने वाले हैं। किसके साथ? यादव राणा के साथ मुलाकात करने आए हैं। Among the strangers is an old man, और स्ट्रेंजर्स जो आए हैं उनमें एक जन बुजुर्ग इंसान है, bearded and wearing the robe of a priest, उसका दाढ़ी है और वो पुजारी जैसा लगते हैं, जैसे भगवान की पूजा करने वाले जो होता है ना उसका जैसा बुजुर्ग इंसान लगते हैं। Holding a swinging bowl with the sacred fire burning it, और हाथ में टंगा हुआ है एक बावल, जिस बावल में पावन आग जल रहा है, मतलब भगवान का पूजा आरती करते समय हम लोग जो आग जलाते हैं उस तरह आग हाथ में टंगा हुआ है एक बाउल में। The 4 strangers in the group are dressed differently from the local people। यादव राणा के राज्य के लोग जिस तरह कपड़ा पहनते हैं उस तरह कपड़ा नहीं पहने हैं। स्ट्रेंजर्स लोग अलग अलग कपड़ा पहने हुए हैं जो कि इस जगह से अलग है। आंचल राणा बाविंग बिफोर यादव राणा, आंचल राणा आके यादव राणा के सामने झुकते हैं और क्या बोलते हैं? योर हाइनेस रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग्स, महाराज मेरे प्रणाम ग्रहण कीजिए। यादव राणा आप जवाब देते हैं, थैंक यू आंचल, वेलकम टू माय हाउस। आंचल धन्यवाद मेरे घर में आने के लिए। एंड हु आर दीज स्ट्रेंजर्स दैट यू हैव ब्रॉट विथ यू, ये जो लोग हैं अनजान लोग हैं, ये लोग कौन हैं जो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं? Where do they come from, ये लोग कहाँ से आए हैं? Do they speak our language, इन लोगों को हमारा राज्य की भाषा क्या आता है? आंचल राणा now reply, leading the old man forward and presenting him to the chieftain। आंचल राणा उस बुजुर्ग इंसान को सामने लाए और सामने लाके यादव राणा के सामने खड़ा कर दिया। ओके, दिस ओल्ड मैन डांस, महाराज ये बुजुर्ग इंसान हमारा देश का लैंग्वेज, हमारा देश का भाषा जानते हैं। स्पीक स्ट्रेंजर एंड टेल अवर राणा साहिब who you are and what you want from him। तो हमारे राणा साहिब जो है उनके सामने आइए और बोलिए आप कौन हैं और आप क्या उनसे मांगते हैं, बताइए। ओल्ड मैन, अब बुजुर्ग इंसान जवाब दे रहे हैं, वी कम इन पीस सर, स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड ऑफ पर्शिया। महाराज हम लोग शांति चाहते हैं और शांति से आए हैं, और हम लोग दूर पार्सिया से आए हैं। पार्सिया नाम का एक जगह है, लैंड है, कंट्री है, वहाँ से हम लोग आए हैं। वी हैड टू लीव आवर लैंड एंड कम अवे बिकॉज वी वर नो लॉन्गर सेफ देयर। हम लोगों को उस जगह को छोड़ना पड़ा, उतना दूर से हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। Our lives were in danger because we practice a religion that is different from that of our new rulers। हमारा अभी जिंदगी का खतरा है क्योंकि हम लोग दूसरा धर्म से हैं और हम लोग उस जगह के राजा जो है, नया राजा जो बने हैं, उनका धर्म से थोड़ा अलग धर्म हम लोग मानते हैं। हेल्प अस मोस्ट ग्रेसियस रूलर, हे महान राजा हम लोग को मदद कीजिए। ऑल वी आस्क इज रिफ्यूज एंड ए चांस टू लिव इन पीस। हम लोग खाली यही चाहते हैं कि हम लोग शांति से यहाँ पे रहे और
आप हम लोगों को थोड़ा आश्रय दीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। याद रखना, ऑल रिलीजियंस आर बट डिफरेंट वेज टू गॉड। हर कोई धर्म अलग अलग हो सकता है भगवान के पास प्रेयर करने के लिए, मगर सब कोई भगवान के पास ही प्रेयर करते हैं और सब कोई एक बराबर है। धर्म अलग अलग हो सकता है। ऑल रिलीजियंस आर बट डिफरेंट वेज टू गॉड, मतलब भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए धर्म तो अलग अलग है, मगर सब कोई भगवान पास ही जाते हैं। हर तरह की प्रेयर ही भगवान के पास नहीं जाते हैं। यू आर वेलकम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन हियर मोस्ट ग्रेसियस स्ट्रेंजर। आप आगंतुक है, आप नए हैं, आप हमारा देश में अपना जो धर्म वो अच्छा से आप मान सकते हैं और आप पाल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। यू एंड योर पीपल कैन लिव इन सेफ्टी इन आवर कंट्री। आप और आपके जितने सारे लोग हैं हमारा इस राज्य में शांति से रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। ओल्ड मैन bowing low and saluting the chieftain with trembling hands। झुका कांपते कांपते अपना हाथ में प्रणाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए बुजुर्ग ने अब बता रहा है, क्या बता रहा है? थैंक यू योर ग्रेशियस हाइनेस, महान राजा आपको धन्यवाद। आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पुअर पीपल हु हैव बीन सर्चिंग फॉर रिफ्यूज फॉर मेनी ईयर्स। मैं उन लोगों की तरफ से जो कि बहुत दिन से एक अच्छा जगह ढूंढ रहे थे, सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे, उन लोगों के पक्ष से आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद बताता हूँ। एंड हैव नाउ फाउंड इट इन दिस मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ कंट्रीज। और अभी हम लोगों को जितने सारा है हम लोगों को अभी अच्छा सा एक जगह में अब सुरक्षित एक पनाह मिल गया है, सुरक्षित एक जगह रहने को मिल गया है जो कि आपका राज्य है। याद रखना। बट टेल मी फर्स्ट व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी अपार्ट फ्रॉम परमिशन टू लिव इन माय लैंड एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन हियर। अच्छा, तो मुझे एक बताइए, एक जरूरी बात बताइए जो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अपना धर्म को पालन करेंगे और यहाँ पे रहेंगे, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? ओल्ड मैन, वी वांट फ्रीडम योर हाइनेस, फ्रीडम टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर कंट्री एंड रिलीजन। महाराज, हम लोग चाहते हैं आज़ादी, जिस आज़ादी के कारण हम लोग अपने बच्चे को अपना प्रथा, अपना रीति रिवाज, अपना धर्म के अनुसार, अपना देश के हिसाब से पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं। इस तरह परमिशन चाहिए, इस तरह आज़ादी चाहिए। ज़्यादा बोलना, आई ग्रांट यू द राइट टू दैट। ठीक है, आपको ये आपका ये जो मांग ये मैं मंजूर करता हूँ। What else do you need? और क्या चाहिए बताइए? Old man, a small piece of land to till, छोटा एक टुकड़ा जमीन जिसमें हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। till मतलब cultivate, ओके, खेती बाड़ी करना। Your Highness, so that we may work and earn our bread and not be a burden upon the people of your country। और इसीलिए चाहिए जमीन ताकि हम लोग वहाँ पे काम कर सकें, हम लोग अपना रोजी रोटी कमा सकें और आपका देश के इंसान के ऊपर में बोझ ना बने। ज़्यादा रहना। ग्रांटेड, चलो ये भी मान लिया जाए। बट इन रिटर्न ओ स्ट्रेंजर, व्हाट विल यू बी एबल टू डू फॉर द कंट्री दैट हैज एडॉप्टेड यू। अच्छा ठीक है, सब कुछ मान लिया जाए, मगर अब मुझे बताइए, हम लोग आप लोगों को रहने दे रहे हैं, रहने देने के लिए परमिशन दे रहे हैं, हमारा देश आपको अपना रहे हैं, तो आप इसके बदले में क्या देंगे? इस देश को आप क्या देना चाहते हैं? ओल्ड मैन, बिफोर आई टेल यू दैट योर हाइनेस मे आई आस्क फॉर समथिंग। मैं और बताऊंगा, मगर उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। याद रखना। सडनली, हाँ क्या चाहिए बताइए? ओल्ड मैन, मे आई हैव ए स्मॉल बाउल ऑफ मिल्क एंड सम शुगर। मैं क्या मांग सकता हूँ एक बॉल मिल्क, मतलब एक कटोरी दूध और कुछ शक्कर, क्या मुझे मिलेगा? याद रखना। क्लैप्स हिज हैंड्स एंड सिग्नल्स। याद रखना, तालियां बजाते हैं, इशारा करते हैं। In a few minutes, a servant comes with a bowl of milk, which he hands to the old man, together with some sugar on a plate. और कुछ ही पल में एक नौकर आते हैं, हाथ में एक कटोरी दूध लिए हुए और एक प्लेट में शक्कर लाते हुए। The old man hands over the sacred fire to one of the other strangers, then adds the sugar to the bowl of milk and stirs it well. वो बुजुर्ग इंसान अपना हाथ में जो जला हुआ जो कटोरी था, जो कि पावन आग से था, वो दूसरा एक जन को दे दिए उन लोगों में से, और
प्लेट से शक्कर लेके दूध में मिला दिए और अच्छा से वो खिलाने लगे। He holds it up in his trembling hands. अपने कांपते कांपते हाथ में वो उसको पकड़े, इसको कटोरी को, दूध का कटोरी को, और आप कुछ बताने चले। क्या बता रहे हैं ओल्ड क्या बताते हैं? Does anyone here see the sugar that is in this bowl of milk? मेरे पास में जो सामने में कोई खड़े हैं, क्या कोई देख सकते हो इस कटोरी में जो दूध है, दूध में मैं शक्कर मिलाया हूँ, शक्कर को कोई देख सकते हो? वो शक्कर कोई किसी को दिखाई दे रहा है क्या? ऑल बाइस्टैंडर्स, बाइस्टैंडर्स मतलब आसपास में जो खड़े हैं, सब कोई एक साथ में क्या बोलने लगे? इन शॉर्ट ऑफ कोरस, मतलब सब मिलके एक साथ में क्या बोलते हैं? नो नो नो, नहीं दिख रहा है, मतलब इस दूध के कटोरी में, इस कटोरी में जो दूध है उसमें शक्कर नहीं दिख रहा है। ओल्ड मैन, वी शैल ट्राई टू बी लाइक द सुगर्स इन दिस बबल, सर इनविजिबल। महाशय, किसको बोल रहे हैं महाशय? राजा को बोल रहे हैं महाशय, हम लोग इस कटोरी में जो दूध है, दूध में जो चीनी है, शक्कर जो है, इस शक्कर की तरह हम लोग मिल के रहेंगे, इनविजिबल रहेंगे। मतलब ये अगर एक देश है, इस देश को हम लोग कटोरी समझते हैं, और इस देश का जो इंसान है, जो इंसान को अगर दूध समझते हैं, तो हम लोग बन जाएंगे शक्कर, मतलब इस इंसान को भीड़ में हम लोग मिल जाएंगे, ठीक है, और इनविजिबल रहेंगे, मतलब अलग से हम लोगों का कुछ पहचान नहीं होगा। बट प्रेजेंट ऑल द सेम, मगर जिस तरह शक्कर यहाँ पे है उस तरह हम लोग रहेंगे। टू स्वीटन द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस दैट यू हैव शोन टू अस, और हम लोग उसी तरह मिठास देंगे जैसे दूध में शक्कर मिलके दे रहे हैं। शक्कर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर उनका जो मिठास, उसका जो उपस्थिति वो दूध में मिलता है। तो हम लोग भी इस तरह देंगे, जैसे कि आप हम लोगों के ऊपर जितना दया दिखाए, उस तरह जितना दया दिखाए वो शक्कर की तरह मीठा था, तो उस तरह शक्कर की तरह मीठा हम लोग दूध में मिलके रहेंगे, मतलब दूध के अंदर में हम लोग शक्कर की तरह मिलके रहेंगे। मतलब इस तरह आपका इंसान के भीड़ में हम लोग भी आपके इंसान की तरह रहेंगे, और मिठास जितना सारा देना है हम लोग देंगे। We will blend with your people, आपका यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ हम लोग घुल मिल के रहेंगे। Just like the sugar which blended with the milk, adding sweetness to it, जैसे कि मैं अभी बताया था, उस तरह रहेंगे जैसे कि दूध में शक्कर मिलते हुए मिठास पैदा करते रहते हैं, मगर उस शक्कर को दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग मिल के रहेंगे। जादव राणा, वेल स्पोकन ओल्ड मैन, बहुत अच्छा बोले। We are pleased to welcome you and your fellow countrymen to our country. बहुत खुश लग रहा है, बहुत सुखी लग रहा है मुझे कि आपके जैसा एक इंसान हमारा देश में आए हैं और आप हमारे देश में रहने लगेंगे। You will always be welcome here and no one will trouble you because you follow a different religions. हमेशा आपको स्वागतम करते हैं इस देश में, और यहाँ पे आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप दूसरा धर्म का है, इसलिए आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। Live in peace among us as our neighbors and friends. हम लोगों के अंदर में आप रहिए और हम लोगों का पड़ोसी बन के, हम लोगों का दोस्त बन के हम लोगों के साथ रह जाइए। Old man bending over with the other three men who came with him to touch their forehead to the soil. उस बुजुर्ग इंसान और उसके साथ जो आए हैं और तीन इंसान, तीनों जमीन में अपना सर को लगाए, प्रणाम जैसे करते हैं ना हम लोग, उस तरह प्रणाम के भंगिमा में वो लोग जमीन को टच किए। We salute the gracious and hospitable country, इस महान देश जहाँ पे अतिथि लोगों को इतना अच्छा सलाह दिया जाता है, व्यवहार दिया जाता है, अच्छा प्यार दिया जाता है, इस देश को हम लोग सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब अतिथि लोग, जहाँ पे गेस्ट लोगों को इतना अच्छा खातिरदारी किया जाता है। टू बिकम वन ऑफ देम henceforth, और साथ ही साथ आज से, इसी वक्त से हम लोग इसी देश का हो जा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ द पर्शियंस केम टू इंडिया, और इसी तरह पर्शियस लोग जो है इंडिया में आए थे, एंड बिकेम वन ऑफ इट्स मेनी पीपल्स, और बहुत सारा धर्म के लोगों के साथ घुल मिल गए और इस देश को अपना लिए, और ये देश भी उन लोगों को अपना लिए। सो दिस इज द स्टोरी, ओके, दिस इज द प्ले। यू कैन act in this play like the old man Jadav Rana and Anchal Rana. So this way you can do this play, okay. First of all
you need to understand this play well with the help of word meanings. I have not written word meanings here. There is not enough space on the board. I will say through snaps. Okay. With the word meaning, you must try to understand the whole meaning of the story and the play. Okay. And try to understand every word, every line, so that if the questions come from inside, there will be no problem. Okay. Don't just depend on exercise question answers. You read the passage chapters in a manner so that any question come from inside the chapter you can do. So that's why I am telling repeatedly, just read the passage again and again, okay? And try to understand the whole passage. Then try to do the question answer from exercise. And if I give the question from inside also, it will be also done easily. So bye bye all of you. Have a nice day.